अभी दिखाई दे रहा है सभी को? ओके। तो कल हमने जब स्लीप साइकिल की बात कर रहे थे तो हमने आरईएम की तो हमने पहले कर ली थी। मैम हमने के कॉम्प्लेक्स तक किया। हाँ, एनआरईएम और एन non rapid eye movement sleep is basically the quiet sleep without the dreams, and REM sleep is the active sleep in which your dreams are there basically. Okay, that is quiet sleep is basically a very deep sleep. Okay, so during a in a one sleep, during a night sleep, there are the many cycles, and in one cycle of sleep, there are the different stages like the N1, N2, N3, and N4 combine both, and then the REM. Okay, so these make the one cycle of the sleep, and each night or during the sleep, many cycles of sleeps जो है occur. So next is the N3 and the N4, the stage 3 and the 4. They usually combine stages of the sleep, and these are basically the most potential sleep disturbances are there because of the noise and the movements, and they don't show any reaction besides some noise or some reactions, movements are also happen, but sleep was there, and the timing is 30 to 45 minutes basically. And in this, there is a slow wave sleep basically, and this is that occur during the first third of the night. Okay, slow wave sleeper there. So usually delta waves um, arise during this time, and besides noises and some movements, they are very difficult to wake up. And some people have the prone to walk in the sleep now. So those problems happen in this stage. तो जिनको रात में चलने की जो बीमारी होती है, नींद में चलने की बीमारी होती है, वो इसमें होती है. वॉक एंड टॉक हैपन इन दिस स्टेज बेसिकली. ओके, एंड अगर वो उठ जाते हैं इस उसमें, तो वो आप उनका ना बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर बैठता है, उनको वापस आने में नॉर्मल स्टेट में थोड़ा टाइम लगता है. होता है ना, कई बार आप सोते हो, बहुत गहरी नींद में होते हो, कोई अचानक आके हिला दे, उठ उठ उठ, देख देख देख, आप एकदम से ना आपका ना डिसबैलेंस सा हो जाता है, डिसोरिएंटेशन होता है आपका. फिर थोड़ी देर में ना यू फील कि अच्छा यार कौन था, क्या कर दिया, हाँ हाँ, देन यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट्स गोइंग ऑन. पर एकदम से if you wake up at this stage, you feel sort of the disoriented for few minutes. Okay, so this is also the slow wave sleep or the delta sleep, this stage. Then the next is the REM basically is the last one, and it lasts around 10 to 90 minutes, depends uh, कि how many cycles you are taking in a one sleep. So REM is mainly happens maybe for the 10 minutes or for the 90 minutes also, and this is a very powerful dreams happen in this state. uh, uh, Bed wetting also, and those people have the nocturnal aneurysms na episodes of the bedwetting in the children there also, and the sleepwalking also in this. Initiation in the stage 3, but mainly the walking in the sleep is in this stage only. Yeah, REM. And the physiological changes, your heart rate to becomes now more comparatively to the NREM, and your respiration rate, you know, they start increasing, but your muscles are sort of the in a relaxed way. So brain is active because of the dream stage, but body is in a very resting position,
and this is also the paradoxical sleep also. Nightmares, dreams, all those things happen in this sleep, REM. Then there are some sort of the investigation which are used to find the changes in our brain, especially in the brain waves. So what are those? These are the, first of all, the EEG, to understand about the brain waves. So if there is any distraction or any changes, if any person's behavior or any, after any illness or after any injury, तो to study about the brain, उसको देखने के लिए हम लोग जो है ब्रेन की ईईजी करते हैं. व्हाट इज ईईजी? इज द इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम. तो इसमें इलेक्ट्रिक से होता है, एनसेफेलो इज रिलेटेड टू द ब्रेन बेसिकली, एंड ग्राम इज द रीडिंग. तो जैसे हम हार्ट के लिए क्या करते हैं, हार्ट के लिए हमारी होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. वो कार्डियक मतलब हार्ट के लिए होती है. तो ब्रेन के लिए हमारा होता है ईईजी, जो हमें क्या, हम उसमें ढूंढते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, the abnormalities in our brain waves. So it's basically our brain waves are also the impulses are there basically, which are due to the brain waves. So to detect any abnormality, the brain waves or the electrical activity of our brain. So during the this procedure, electrodes consisting of small metal discs, आपने कभी कराया तो छोटी छोटी ना मेटल की छोटी छोटी टुकड़ियां सी होती हैं, छोटी छोटी सी, और उनको पतली पतली तारों से जो है ना आपके स्कैल्प के ऊपर अपॉन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर स्कैल्प उसको पेस्ट कर देते हैं. और उसके बाद उसका कनेक्शन आपके एक मशीन में होता है. वहां पर आपको जो भी ब्रेन में एक्टिविटी हो रही होती है वो उसमें आपकी रीडिंग आती है, और वो उस आपकी जो भी चेंजेस होते हैं ब्रेन में, तो वो उसको रीड कर लेती है. तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्रेन की जो एक्टिविटी है दैट इज नॉर्मल और एनी एबनॉर्मलिटीज देयर. यस साक्षी पांडे, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम इन विच केस लाइक वी डू दैट, हमें कब करना पड़ता है ये देखिए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी होती है जो आपको लगता है कि ब्रेन से रिलेटेड है, ये उन लोगों के लिए करी जाती है, ठीक है ना. तो वो कुछ सिम्टम्स होते हैं, नॉट इन ईच एंड एवरी डिजीज, लेकिन वो डॉक्टर्स ही बेसिकली इसको प्रिस्क्राइब करते हैं. मेनी डिजीज, स्पेशली यू कैन से सो, जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं समटाइम्स, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो मतलब एक किसी के बिहेवियर में बहुत चेंजेस होता है. तो जैसे सर पे यूजुअली अगर हम करेंगे, कोई किसी को सर पे चोट लग गई है, तो उसका कोई ब्रेन पे उसका इफेक्ट तो नहीं गया है, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं गया है, कुछ हो तो नहीं है, तो हम उसका एक ईईजी करा लेते हैं. या किसी को फिट पड़ता है, यूजुअली हम देखते हैं किसी को फिट पड़ गया है और बार बार उसको फिट पड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके ब्रेन में ऐसा क्या चेंजेस है. यूजुअली ऐसे जो जिनको भी फिट वगैरह पड़ता है, एपिसोड्स उनको फिट के पड़ जाते हैं, तो रिकमेंडेड है कि उनको आप कराते हो. चोट वोट में ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को चोट लगे तो हम ईईजी कराते हैं, बट बेसिकली इट्स अ वेरी कॉमन बीमारी जैसे कि है. लेकिन और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें जरूरत पड़ती है कि ब्रेन की एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए. ओके. Then is the other investigation is the electromyography. तो electromyography किसके लिए होगी? Obviously हमारी मसल्स के लिए होगी मायो. लेकिन यहाँ पर हमारा जो ब्रेन हमारी मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जो एक्टिविटी करता है, तो वो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज प्रॉपर और नॉट. In some diseases, to understand whether our neuromuscular coordination is in good condition or there's any abnormality, to detect those abnormalities, we going for the investigation of the electromyography. So in short we say EMG. So EMG measures what? The muscle response or the electrical activity in response to a nerve stimulation of the muscles. तो मसल्स पे जो भी हमारा इलेक्ट्रिक या जो भी उसको नर्व से मैसेज आता है, तो वो उसको सही रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसको हम ईएमजी करते हैं. और इसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द टेस्ट 1 or more स्मॉल नीडल्स
उनको भी हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इंसर्टेड थ्रू द स्किन इनटू द मसल एंड देन इट्स अ चेकिंग, उसमें एक ग्राफ जो निकलता है उसके अंदर उसकी एक्टिविटी उसमें कुछ इस तरह के होते हैं जिससे हमें देख के पता चलता है कि वेदर दे आर नॉर्मल और नॉट. Then other is the electrooculography. Oculography is basically related to the ocule is the related to the eyes, ki whether eyes are working proper, my movements, especially for the eyes movement basically. So in this EOG to measure the corneoretinal standing potential. तो ये हमारे आईज की मूवमेंट्स के लिए बेसिकली हम देते हैं कि वो प्रॉपर आपकी आईज मूवमेंट प्रॉपर है कि नहीं है. तो इसमें भी हमारे कुछ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो ऊपर और नीचे, आईज के ऊपर और नीचे और साइड पे हम उसको लगाते हैं, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द आई. और उसके बाद उसको हम चेक करते हैं कि वेदर जो हमारा वो भी कोऑर्डिनेशन में है कि नहीं. तो इसके बाद हमारी जो ब्रेन की वेव्स की बात होती है, जो हमारे ब्रेन्स की बेसिकली जो बात होती है सारी वेव्स की बात है. तो जब हम अवेक कंडीशन में होते हैं तो हमारा, अगर हम ईईजी को देखते हैं जो ब्रेन का है, आप देखिए कि ऐसे उसकी जो है ग्राफ में इस तरह की जो है वो शो करता है. आरईएम वाली स्टेट में जो है वो आप देखिए कि क्योंकि वो एक्टिव स्टेट में है, अवेक में आपका माइंड एक्टिव है, आरईएम स्टेट में भी एक्टिव है, लेकिन नॉन आरईएम में थोड़ा सा ब्रेन आपका जो है स्लो फेज में होता है. तो वो इस तरह की आपकी जो है उसमें एक्टिविटी दिखाई देगी. ईएमजी में मसल एक्टिविटी भी अवेकिंग स्टेज में आप बहुत अच्छे से आपकी जो है बॉडी में एक्टिविटी होती है. आरईएम में आपकी जो ब्रेन एक्टिव होता है पर बॉडी बिल्कुल आपकी शांत होती है. तो इस तरह से होगी. नॉन आरईएम में हल्के हल्के, क्योंकि हमें ट्विचिंग्स हमारा थोड़ा सा होता रहता है बॉडी मूवमेंट, तो यहाँ पे ये हल्का फुल्का इसमें दिखाई दिया है. एंड द आईज की मूवमेंट जो कि हम देखते हैं, तो आईज की मूवमेंट ऑब्वियसली आप अवेक कंडीशन में है. आज में क्योंकि यहाँ पे हमारी रैपिड आई मूवमेंट है तो आई मूवमेंट में होगी यहाँ पर, और दिस इज द एनआरईएम इज द नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो यहाँ पर आईज की मूवमेंट नहीं है. तो इससे वो हमें उसके जो पर्सन के बारे में जो है पता चलता है कि अलग अलग उसमें होते हैं जो अलग अलग हमारी वेव्स होती हैं. तो कौन से स्टेट पे कौन सी वेव्स बेसिकली काम करती है और उनका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कई बारी, तो वो हम देखते हैं. तो डेल्टा वेव्स जो होती हैं वो मैम रेम का क्या फुल फॉर्म है मैम? रेम और नॉन रेम. हाँ, yesterday I think so you was not there. तो REM रैपिड आई मूवमेंट. ओके ठीक है. नॉन मीन्स रैपिड आई मूवमेंट इज नॉट देयर एंड REM इज आई मूवमेंट इज देयर, रैपिड आई मूवमेंट. तो स्लीप की स्टेजेस थी जो हम कल से कंटिन्यू कर रहे हैं. तो 3 जी स्टेजेस मैम. में हमारी आईज मूवमेंट नहीं होती हैं, वो ही उसके बारे में सब हम डिटेल में करें, और एक स्टेज में हमारी आई मूवमेंट होती है. तो डेल्टा वेव्स हमारे कब होती है? नॉन आरईएम स्टेज में होती है. हेलो जी मैम सुन रहे. जी सर, करिए म्यूट सर. Ma'am, I think you also got muted, ma'am. I think madam got call. Okay. Yeah, sorry, urgent call. So the waves in the non-REM state, basically, the first stage you can say. So the delta waves are there. So the frequency of waves are different. Wavelength is different. That's why they are different name also. The activities according to that. So in the yoga, if we are taking the sort of the deep sleep, shavasana, basically you can go for the deep sleep also. So during that time, in our brain, the delta waves occurs mostly. Okay, and they have when delta waves actually arises, they have very good effect on the any problem in our body, like the tumor
or in the epilepsy cases, if person has a mental deficiency or the depression. If by performing during this time, delta waves have a effect on these problems. Okay, then the theta waves. Theta waves are also during the non-REM. If their wavelength is like this, then the theta waves have during when we perform in the yoga is some drowsiness or the deep meditation, that the theta waves occurs, and these basically related to the excessive depression also. They have the effect on the body and gives to the excessive Ma'am, ma'am, yes. Yes. delta, theta, and alpha, they both are non-REM type of sleep. Yes. So, and stages are different, but तो क्या हम ये uh, कह सकते हैं कि जब भी नॉन रेम का पैटर्न चल रहा होगा तो डेल्टा, थीटा और अल्फा तीनों चलेंगे साथ? नहीं, जब N1 N2 N3 होगा तब इनका अलग अलग होगा. N1 में हमारा डेल्टा होगा, क्योंकि उनमें भी हमने बात करी थी ना, आपको बताया था कि N1 में, N2 में, N3 में हमारा उस समय सबका अलग अलग क्रम होगा. तो हमारा जब N1 होगा उसमें हमारी जो होती है यूजुअली हमारी अल्फा रेव्स होती हैं, जो कि नीचे से आप देखोगे ये अल्फा वाली, ये हमारा N1 में होती है. N2 में हमारी जो थी वो हमारी थी मेरे ख्याल से इसमें हमारी डीप स्लीप वाली डेल्टा थी, और उसके बाद हमारी जो थी वो हो जाती है नहीं मैम, N2 में थीटा थी. हाँ जी. N2 में तो थीटा है. हाँ, स्लीप 2 में हमारी, स्लीप 1 में हमारी कौन सी है? स्लीप 1 में थी हमारी अल्फा. अल्फा, है ना. और स्लीप 2 में हमारी मैंने बताया था उस दिन यस्टरडे, थीटा. थीटा. अल्फा, Sleep 1 ma'am. स्लीप 1 नहीं, इन द N2. N. थीटा मैम. Okay, yeah. And in the N3 we have the delta 1. Okay, so delta 1 is N3. N3 and N4 both is a combined stage. So alpha in the N1, theta in the N2, and delta in the N3 and the N4. Then the beta waves happen in where? In the rapid eye movement state of sleep. So in this basically our body is in mind is active, so eyes open, attention and wakeful state, the mental activity and sort of the arousal state, and the mental tension. Okay, so and the gamma is basically related to the anxiety and the stress. You know, in the whenever we got very stressed or in anxiety, so gamma waves occur in our brain. So this is, so gamma say waves you see very disturbing sort of thing. Then the beta is a little bit, then the better one is a delta. Delta happens in when we are in a very deep state, deep sleep state. Okay, yeah. So ma'am, gamma is not related with the sleep. Gamma rises during the stress condition, anxiety, stress condition. Okay. D for deep sleep, you see in this picture, next one, gamma is very inquisitive sort of, बीटा इज थोड़ा सॉर्ट ऑफ द पैम्परिंग लाइक चाइल्ड ना, बेटा होता है, प्यारा प्यारा होता है, बेटा से बीटा आप कह सकते हो कि दे नीड्स अ पैम्परिंग सॉर्ट ऑफ. अल्फा इज आल्सो लिटिल बिट, देन थीटा मेडिटेशन स्टेट, and delta is a deep sleep. Okay, so there are the sleep disorders also. During the sleep we have many disorders actually also. If we not get any peaceful or the restful sleep, so we do not feel so refreshed in the morning. So there are many, they maybe because of some disorders may happen. So what are those?
So you regularly experience difficulty sleeping, but if it's not within a one night or a two, एक तो दिन में अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर ये रेगुलरली अगर आपको होता है कि आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आप सोते हो, आपको जब आप सोकर उठते हो तो आपको जो है फ्रेश फील नहीं होता है, तो तब आपको जो है एक तब हम कहते हैं कि उसको कि हमें कोई नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। So you regularly experience difficulty in sleeping. You are often tired during the day, even though you are slept for at least 7 hours the night before, है ना। नॉर्मली है ये, आप इतने थके हुए होते हो लेकिन फिर भी आप जो है इतना जो है आप इतना घंटे जो है आपको इतना नींद होनी चाहिए। तो यू हैव ए रिड्यूस और द इम्पेयर्ड एबिलिटी टू परफॉर्म रेगुलर डे टाइम एक्टिविटीज। आप फिर दिन में जो है अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली अगर आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो बहुत सारे हमारे देयर आर मेनी स्लीप डिसऑर्डर्स, सॉर्ट ऑफ द 80 टाइप्स ऑफ द मोस्टली आर द इंसोम्निया। इंसोम्निया इज द difficulty to sleep or the sleeplessness, and there is a sleep apnea. There is a difficulty in respiration during the sleep time. Then the restless leg syndrome, कुछ लोगों को होता है ना पैर हिलाने की बहुत आदत होती है, सोते सोते पैर हिलाते रहेंगे। Then other is the narcolepsy, parasomnias, abnormal sleep behavior disorders, night terrors. There are the many. So this is a list of the sleep disorders. Some of you may seen in some patients also, or in your clients. Abnormal sleep behavior disorders during the then the bruxism, central sleep apnea, chronic fatigue syndrome, circadian rhythm sleep. There are those so many, but we are not here to learn all these basically the disorders. But why happen, what is the cause of these disorders basically? First of all, if you have any stress, physical stress sort of thing. So what physical stress? If you have any ulcer, like you have any gastric ulcer or you have any peptic ulcer sort of things, mouth ulcer also, so because of that related to those problems, you may not get the proper sleep, है ना, because of the pain or anything, any disturbance in your system related to that particular problem, है ना. Then the medical problems such as you have any illness, what the like the asthma, because asthma patient have a very difficulty in night especially, because whenever they lie down, so they found very difficulty in breathing, so they have sort of very fear in lie down, so because of this they are not get a proper sleep. अभी अल्सर तो पेट में होता है ना? अल्सर पेट में होता है, लेकिन कई बारी जैसे आप खाना खाते हो तो आपके पेट में बहुत दर्द होता है, खाना खाने के बाद है उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो रात को जब आप खाना खाते हो आपके फिर रात को पेट में दर्द होगा तो आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, है ना. अच्छा, हाँ। क्योंकि आप डाइजेशन का आप करते हो तो उसमें जैसे ही खाना फिर जाएगा तो आप सही रात, दिन में तो कई बारी हम लोग करते हैं कि चलो हो गया, लेकिन रात को जब आप डाइजेशन का आप ऐसी चीजें लेते हो, हैवी फूड वगैरह लेते हो, तो आपको दर्द होता है, क्योंकि जब वो चर्निंग एंड वो सब हमारा प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से तो आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, एसिडिटी बहुत हो जाएगी, है ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी. अस्थमा में रात को पेशेंट लेटेगा, वो लेटने से डरता है क्योंकि जब भी वो लाई डाउन करेगा उसका चोकिंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, उसको सांस लेने में लगता है कि आई विल नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, तो वो नहीं सोता है, वो सही रात बैठा बैठा ही निकाल देता, तो वहां पर उसकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी. फिर एनी साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कुछ भी उसको एंजाइटी या डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ कुछ भी उसको इशू हो सकते हैं, जिससे कि उसको भी रातों को होते ही आपको आते होंगे कहीं, अरे यार बहुत टेंशन हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही. अभी जैसे आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, इट्स नॉट, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, और यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्या करूं, नींद नहीं आ रही, रात को उठ के बैठेंगे, मतलब 2 बजे, यार मेरा वो चैप्टर नहीं हुआ, करूं, मतलब वो डिस्टर्बिंग सा रहता है.
तो वो भी आपका इसमें स्लीप डिसऑर्डर्स में जो है कर सकता है। एनवायरमेंटल में भी आपके कुछ भी, आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज नाइट में होती होंगी, लाइक समथिंग, कोई मैरिज हॉल हो तो लेट नाइट्स हो रही हैं, बैंड बाजा आ रहा है, वॉट एवर, या कोई ऐसा उधर कोई इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, तो आपके रात लेट नाइट शिफ्ट्स चल रही होंगी, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, तो यू आर फील सो अनोइंग ना, योर स्लीप में also affected due to this. So people who work in the night shift, है ना, तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक तो बिगड़ा ही हुआ है, बिकॉज हमने बात करी थी सर्कैडियन रिदम की, तो वो हमारा उनमें स्पेशली जो एमएनसीज में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट ड्यूटीज करते हैं, नॉट इन द एमएनसीज ओनली, जैसे कि इस पिक्चर में ही आप देख रहे हो कि कोई चौकीदार है, कोई जो उसमें आपके जो एटीएम के बाहर जो आपके गार्ड्स काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी से उनकी, तो उनका भी क्या होता है, उनका जो साइकिल है वो बिगड़ा हुआ होता है, तो उनको भी नींद का जो है इशू फिर रहता है। जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम में नार्कोलेप्सी होती है, उसमें भी उनको इश्यू रहता है, या फिर कुछ आपने मेडिकेशन, कुछ दवाइयां ली हुई होंगी, तो वो भी आपके स्लीप को डिस्टर्ब करने में उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब सिम्टम्स क्या होते हैं स्लीप के डिसऑर्डर से, हम समझेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स बेसिकली। तो क्या होता है कि आप गाड़ी चलाते चला, जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपको कभी भी नींद के जो है अटैक हो सकता है, आप कह सकते हो, या आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉपरली, जो है रिफ्रेश फील नहीं करोगे, तो व्हाट हैपन, यू फॉल स्लीप ड्यूरिंग द ड्राइविंग। करते करते होते हैं ना कि भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल, या मैं बहुत थक रहा हूँ, नहीं मुझसे नहीं ड्राइविंग होगा, या वो बीच बीच में झपकी आ जाता है। And the struggle to stay awake when inactive, such as when watching television or reading, ऐसे कुछ करते हैं कि भाई नींद ना आए, हम जगे रहें, कुछ ट्राई करते हैं कि चलो मूवी लगा लो या कोई मैगजीन पढ़ लो, whatever, and difficulty paying attention or concentration in any work, your school or home or office, whatever, तो आपका प्रॉपर उधर अटेंशन ही नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप दूसरे बोलेंगे यार तेरे को ठीक है, तो नींद आ रही, तेरे शक्ल से सोया नहीं था क्या, नहीं नहीं मैं आई एम ओके, नहीं ऐसा लग रहा है, तो बहुत शक्ल से तेरा बहुत लग रहा है, बहुत नींद है, सब ठीक ठाक, तबीयत ठीक है, तो यू फील यू लुक सो स्लीपी बेसिकली, एंड डिफिकल्टी विद योर मेमोरी ऑल्सो, क्योंकि जब माइंड रिलैक्स नहीं होगा, बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो आप भूलोगे भी कि सुबह सुबह पता चले ऑफिस आए हो, इंपॉर्टेंट फाइल आप घर पे ओहो यार मैं रखा था, बिकॉज क्योंकि आपको वो जो एक स्लीप में जो हमारा बॉडी का रिपेयरिंग और जो नीड होती है रेस्ट की, वो नहीं मिला। एंड द स्लोड रिस्पॉन्स ऑल्सो, कि आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप वो सोच रहे हो, आप खोए हुए हो, वट एवर द, एंड डिफरेंट इन कंट्रोलिंग योर इमोशंस ऑल्सो, चिड़चिड़ापन वगैरह, sort of irritability also, all those things. And what is first of all the insomnia? Insomnia is a sleep disorders when you have difficulty in sleep, in falling or the staying uh, sleep. Basically, you uh, insomnia, you have a lot of symptoms also, like the difficulty in falling asleep. यू डोंट फील लाइक टू कि भाई नींद आ जाए, नींद आ जाए, यार नींद नहीं आती, सारी रात बैठे बैठे में तो निकल गई, वेक अप ऑफन ड्यूरिंग द नाइट एंड हैविंग ट्रबल गोइंग बैक टू स्लीप। अब किस तरह की बीमारी है इंसोमिया? इंसोम्निया में नींद ना आना, अगर हम सिंपल सी अच्छा। बात बोलेंगे, इंसोम्निया इज सिंपली द नींद नहीं आना। कॉज अच्छा। में भी, हाँ, उसको नींद नहीं आएगा, रात को उठ के बैठ जाएगा, फिर उसको वापस उसको सोने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाएगा, 2 या 3 बजे उठ जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि वो सो तो लिया है लेकिन उसके बाद यार मेरे को ना रिफ्रेश फील नहीं हो रहा, उसको लगेगा कि नहीं, मतलब बॉडी में अभी उसको जो रेस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका माइंड कहीं ना कहीं एक्टिव था, या इस तरह के, उसको फिर भी जो है नेक्स्ट डे जो उसको फटीगनेस या लिथार्जी वो भी उसको फील हो जाएगा, स्लीपीनेस है, क्योंकि उसको रात में जो उसका स्लीप था डिस्टर्बिंग सॉर्ट ऑफ था, जिसकी उसको नींद प्रॉपर नहीं आया था, तो उसको कुछ भी वो हो सकता है, किसी भी कोई थॉट उसके माइंड में हो कि वो उसको बार बार उसको सोचते रहता हो, तो सॉर्ट ऑफ दिस इज अ इंसोम्निया।
Then what is a sleep apnea? Sleep apnea, it's a serious problem basically, because during the sleep time your muscles got relaxed. See, in this picture I can zoom it. Okay, normal and the sleep. So when you sleep, actually your breathing through the nose, and it goes towards your larynx. So but your tongue, basically the soft palate, your muscles got so much relaxed, they block the airway. So this is sleep apnea. क्या मुंह खोल के सोता है मैम वो? हाँ जी, मुंह खोल के सोने वालों को कह रहे हैं ना मैम? नहीं ऐसा नहीं है, मुंह खोल के सोने से इससे कुछ नहीं है, ये वैसे पिक्चर दिखाया है, इट डजंट नेसेसरी। लेकिन कई बारी जिनको होता है वो कई बारी यही सोचे कि यार रात को ना अचानक से उनको गैगिंग सी फीलिंग हो जाती है, दे हैव द ब्रेथ गैस्प, कि एकदम से उनको लगेगा कि सांस नहीं आ रहा। व्हाई? बिकॉज जो उनका वाला जो होता है, मसल होता है, एक्चुअली एज सच वो एक्टिव है हमारा, हम चाहे सोते ही हैं, अगर वो बिल्कुल रिलैक्स उसमें हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ मसल बेसिकली, तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहां पर हमारा जो होता है टंग, ये हमारा रिलैक्स हो जाता है, और वो हमारा जो एयरवे का पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो चोकिंग सेंसेशन आपकी होनी शुरू हो जाती है आपके अंदर, मतलब कुछ ऐसा फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकंड्स की ऐसी वो स्टेट होती है कि आपको बिल्कुल ऑक्सीजन जो है बिल्कुल भी पहुंचती नहीं है बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज। तो सडनली फिर आप आ जाते हो, तो वापस आ जाते हो। लेकिन ये गैगिंग वाली फील जो होती है अक्सर होती है, तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, कि ज्यादा भी ये आपकी कई बारी सीरियस हो सकती है। तो कई बार इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन का बेसिकली जो कंट्रोल करता है, वो वहां पर जो है प्रॉपर नहीं मैसेज गया। तो स्लीप एपनिया बेसिकली इस वजह से, तो वो हमारी मसल जो है वो बिल्कुल हमारी इसमें उसको प्रॉब्लम करती है। तो एक मतलब देयर आर द टू टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में हमारा जो है गैगिंग वाली फीलिंग होती है, और इन सेंट्रल मतलब ब्रेन से भी कई बारी होता है, तो वो उसके ऊपर भी कई बारी बहुत रिलैक्स्ड उसको कर देता है। तो दे द टू टाइप्स। तो इन दोनों की वजह से आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो इन दिस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो मैंने आपको बताया, तो OSA इज अ कॉमन ऑफ द टू। कॉमनली वो इसी वजह से होती है, ब्रेन वाला बहुत रेयरली होता है, एंड इट इज अ ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे व्हिच अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, and usually when the soft tissues in the back of the throat collapses during sleep. So this is a problem basically, and इससे कई बार कुछ स्नोरिंग का भी, स्नोरिंग इज बेसिकली अ डिफरेंट, स्नोरिंग और इसमें नहीं है, उसको कंफ्यूज, मगर इसकी वजह से कई बार जो होता है ना, जब वो रिलैक्स होता है तो स्नोरिंग हो जाता है, इसकी वजह से जो है स्नोरिंग वाला जो कई बारी हो जाएगा। ठीक है ना? तो डे टाइम में इसके क्या सिम्टम्स आएंगे? ऑब्वियसली नींद बार बार आपकी ना आपको डिस्टर्ब स्लीप रहेगी, आपको बार बार एकदम गैगिंग फीलिंग हो जाएगी, यू हैव टू वोक अप कि सांस नहीं आ रहा, तो वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएगा। जब प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएगा तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, स्लीपलेसनेस रहेगी, फटीगनेस रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, उसको सर दर्द रहेगा, मतलब वो सब प्रॉब्लम उसकी रहेगी जब वो दिन में सो के उठता है, क्योंकि रात को वो बार बार उसको चोकिंग सेंसेशन होती है, तो वो एकदम से झटके से उठता है टू ग्रैस्प द एयर बेसिकली। तो उसका स्लीप जो है प्रॉपर नहीं होगा, तो वो थका हुआ रहेगा। उसकी वजह से जो यहाँ पर उसका सॉफ्ट टिश्यू जो एकदम ढीला पड़ जाता है, तो स्नोरिंग का भी हो जाता है वहां पे इश्यू। तो खराटों की बहुत होती है। तो कई बार देखो ना, कुछ लोगों को होता है, आप ही को ही लगता है कि उसको कर दो कि कहीं इस तरह से न हो, तो नाइट टाइम में उसको लाउड स्नोरिंग हो सकती है, और उसको गैस्पिंग फॉर एयर, उसको क्योंकि चोकिंग सेंसेशन होती है, और नॉट गुड स्लीप होगा, यूरिनेशन या चोकिंग, ये सब उसको जो है प्रॉब्लम रहेगा। Okay, so what are the effects of the obstructive sleep apnea on the health? Not able to drive, heart attack हो सकता है, stroke की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो पैरालिसिस भी हो सकता है, ऑब्वियसली ब्रेन के को आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अनकंट्रोल डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर वाइल मेडिकेशन।
सेंट्रल एपनिया में तो CSA द एयरवे इज नॉट ब्लॉक्ड बट द ब्रेन फॉल्स टू टेल द बॉडी टू ब्रीथ। यहाँ पे ब्रेन का रोल है, यहाँ पे ब्रेन वो करता है कि उसमें वहां पर चोकिंग सेंसेशन हो जाती है। यहाँ पे उसमें जो है वो सॉफ्ट टिश्यू ढीला नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे ब्रेन से मैसेज जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है कि उसको ब्रीदिंग का जो है प्रॉपरली लेना है, तो उसको भी वहां पर भी चोकिंग सेंसेशन जो है हो जाता है। ये कम होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, ये इट्स अ नॉट सो कॉमन वन, ऑब्स्ट्रक्टिव इज सो कॉमन वन। नेक्स्ट इज द रेस्टलेस स्लैक सिंड्रोम। सबको पता है रात को कई बारी सोते हो कुछ लोगों को, इट्स वेरी commonly prevalent, they start moving their feet or the leg basically and it's a very sleep disorder। उससे करने से उनको बहुत ही अर्ज होता है कि दे स्टार्ट मूविंग। दिन में तो देखा होगा कोई अपने ऑफिस में बैठा है, चेयर पे बैठा है, पहले हमारे घर में टोक देते थे कि नहीं नहीं पैर मत हिलाओ, है ना, लेकिन इन लोगों की आदत होती है सोते हुए। तो ये जब बॉडी में एक्टिविटी रहेगी तो वो ऑब्वियसली नींद उनका जो है कहीं ना कहीं ब्रेन और बॉडी वो थोड़ा सा एक्टिव है तो प्रॉपर वो भाषण सुनते सुनते मैम कई लोगों को नींद आ जाती है पढ़ाई करते, वही ना मैम? कैसे मैम भाषण सुनते हैं तो कई लोग सोते हुए मिलते हैं या ऐसे कभी काम करते करते इस तरह नहीं से। नहीं 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 हाँ। नहीं 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 ऐसा नहीं है। ये लोग होते हैं ये अच्छे से सोएंगे आपके सामने, अच्छा। ये सोते अच्छे से हैं, लेकिन उसके बाद है ना उठा पैर हिलाना शुरू कर देते हैं। ये कॉमनली मेरे घर में एक एग्जांपल, आई विल नॉट से द नेम बट आई एम टेलिंग यू, मैं डेली देखती हूँ। पहले क्या होता था कि द एग्जांपल इज गिविंग कि उनको स्कूल के लिए उठाया जाता था कि उठो उठो, कह रहे हाँ, दे स्टार्ट मूविंग द लेग कि यस आई एम, मतलब आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं उठा हुआ हूँ, लाइक ना उठ पैर हिला रहे हिला रहे हिला रहे। तो अब वो इतना कॉमनली वो हो चुका है, जब मतलब डीप स्लीप में नहीं होगा ये एकदम बहुत ज्यादा, लेकिन जब थोड़ा सा एक होता है तो उसमें वो जब अपने बॉडी को जब स्टार्ट मतलब सोने के लिए स्टार्ट करने के लिए या जब सोने का से उठने से पहले यूजुअली वो पैर को अपना हिलाना शुरू कर देते हैं कि भाई एक मैसेज शायद जा रहा है कि यस आई एम अवेकिंग सॉर्ट ऑफ, जो मैंने जो एग्जांपल देखे हैं। लेकिन हाँ मैंने देखे पैर अच्छे से मिला हिला, मतलब पूरा बेड हिल रहा है आपको, यू फाउंड सो इरिटेटिंग, अरे भैया हमें तो सोने दो ना, क्यों पैर हिला रहे हो। तो ऐसा होता है, इट्स नॉट लाइक दिस कि वहां पे कोई भाषण चल रहा है तो आप सो गए हो, नो नो। सोने के जब आप सो रहे हो तो सोते समय आप पैर हिला रहे हो, ठीक है जी मैम। या। और वैसे भी कुछ लोग हैं कि सिटिंग फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड सच एज व्हाइल ड्राइविंग और एट ए थिएटर, जैसे कई बार होते हैं ना हम मैंने कहते हो बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, कुछ लोगों का बहुत अर्ज होता है, मतलब रिलैक्स बॉडी में बैठे हुए हैं कुछ नहीं है तो अच्छा पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, है ना, ऐसा भी होता है। लेकिन ये वाला जो है स्लीप डिसऑर्डर में बेसिकली सोते हुए वो पैर को बहुत अच्छे से लगता है। देन द नार्कोलेप्सिस है जेनेटिकल डिसऑर्डर, बेसिकली इसमें आपका जो है स्लीप रेगुलेशन नहीं होता है, आपकी जो स्लीप और वेकफुलनेस आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, ये आपका जेनेटिक होता है। तो इसमें दिन में भी आप अच्छे से सो जाओगे, बीच बीच में कुछ कुछ झटके ले लोगे, लाइक ये जो आपको दिख रहे हैं ऑफिस में, है ना। तो अगर रात को पूरी नहीं होती है तो दिन में भी आप दिन में उसको इस तरह से आपकी स्टेट रहेगी। और ये बेसिकली जेनेटिक होता है। द पैरासोमनियाज, इसमें नींद में जो चलने वाली जो प्रॉब्लम होती है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसी जो एक्टिविटी आप कह देते हो तो वो ये होता है। तो इसमें भी आपकी डिस्टर्ब स्लीप रहेगी क्योंकि बॉडी जब एक्टिविटी में रही होगी तो एबनॉर्मल मूवमेंट है, आप कुछ बोलना शुरू कर देते हो, कुछ लोग होते हैं ना पूरा कुछ टॉकेटिव हो जाते हैं या मूवमेंट शुरू हो जाती है, सॉर्ट ऑफ दीज आर द पैरासोमनियाज होती है। इसमें स्लीप टेरर्स है, स्लीप वॉकिंग है, नाइटमेयर डिसऑर्डर्स है, स्लीप रिलेटेड ईटिंग, खाने खाने के लिए हाँ उठते हैं, स्लीपिंग स्लीप पैरालिसिस भी सॉर्ट ऑफ हो जाता है कि पूरा शरीर एकदम से ढीला पड़ जाता है, बिल्कुल उठ नहीं रहा है, पूरा बॉडी ऐसे लूज सा हो जाता है। तो दीज आर द एपिसोड्स, इसकी वजह से भी आपके ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर में होता है। देन द नॉन आरईएम स्लीप में भी होता है, हमारा आरईएम स्लीप में भी होता है। तो नॉन आरईएम स्लीप वाली स्टेज में हमारे स्लीप वॉकिंग और स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। और जब हम आरईएम में होते हैं तो वहां पे हमारे ड्रीम्स रिलेटेड आपको ऐसे आते हैं कि बहुत सपने इतने आएंगे कि आप उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे।
या आपका जो है बिहेवियर डिसऑर्डर सॉर्ट ऑफ थिंग्स भी यहाँ पर हो जाएंगे। और भी इस तरह के पैरासोमनियाज हम देखते हैं जिसमें कि जो बेड वेटिंग है या हेलुसिनेशन है एंड अदर थिंग्स। Then the next topic is basically the personality. What is personality? Personality basically is related to a word persona, which means a mask. So personality, each and every person has his own personality basically. So there are the different types of the personality, and personality is basically the definition or the meaning is what is basically the display to the public. And the personality does not mean some particular quality of a person basically. It's the outward appearance of an individual, means the totality of everything about an individual, not only the look wise sort of or the quality wise. On the contrary, it is a combination of the psychological and the physical traits, both. Okay, so it is only on the basis of the personality that the person appears to be different from the other members of the group. Like in this group, all of you people are, I think so, not speak so much. Some peoples are mostly the quiet ones or whatever, but all you have a different personality. चाहे आप सब एक जैसा ही कोर्स कर रहे हैं, एक ही एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, परंतु फिर भी सबकी जो है पर्सनालिटी अलग है। मेरी पर्सनालिटी अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है, सभी की। तो दिस इज बेसिकली is a mirror of the one's total behavior, you can say so. This is a definition according to the Valentine ki personality is a sum total of the innate and the acquired disposition. Innate is a natural and acquired is you basically develop, hai na? So it's a combination of the both. Then the Friedman and the Soschaks in the 1999 added more thing in this personality is the psychological aspect. So psychologically forces that makes people unique. Not only the physical one, also the psychological aspect is also there. So Alport, according to Alport, the personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. Basically, our emotion, our mental, our physical, our sociability is related to our response related to the environment also develops our personality. So in the Cambridge dictionary, the type of the person you are by the way you behave, feel and think, it's make the personality. One of the definition also given by the R.B. Kettle is a personality is that which permits of what a person will do in a given Aethean prediction. So what are the qualities of a good personality? You must have a positive attitude, you have some values, you have also some beliefs, and you motivates other also motivations, desires and feelings all also. These all include in a personality of a person. So nature of a personality depends upon many things also. So the psychophysical system isme malab psycho is related to the mental, the intelligence, your character, and the physical related to your height, weight, complexion. Then the dynamic organization is what is a consistency, matlab consistent behavior in two places. Sort of the samta ka bhav you should have, है ना? कि if you are rewarded somewhere, what is your behavior, and if you are abused by someone, and then what is your behavior, है ना? So this is a consistency, adjustment ability also वो the same thing कि समता का भाव आपको in the द्वंद जो होते हैं हमारे उसमें person adjust with the surroundings, you must have a uniqueness, everyone has. Then the wholesome, that is a sum of the totality of the quality and the traits forms a personality. Then the persistency, what is it includes the willpower, the determination to achieve high goals. Then the how social you are, sociability. Then the goal directed. What is basically your objectives? Your objectives are to achieve your goals and the positive objective of life. Then the others are the determinants of personality. So in the determinants, basically,
there are many factors which affect your personality. What are those? The biological or the heredity factors. First of all, biological जो heredity जो genetically होते हैं, तो genetically को आप देखो कि जो भी मेरा फिजिक जो मेरा है, मेरी हाइट है, मेरा वेट है, जैसे भी मेरे फैमिली में जिस तरह का आ रहा है मेरा वैसा ही होगा। मेरा कॉम्प्लेक्शन, मेरी फिजिकल हेल्थ, मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, जिस तरह से हूँ, नाटी हूँ, अच्छी लंबी हूँ, वट एवर टाइप द, ये सारा मेरा जेनेटिकली ही डिपेंड करता है मेरी पर्सनालिटी को। फिर मेरा इंटेलिजेंसी जो होता है ये भी हमारा हेरिडिटी फैक्टर से भी रिलेटेड होता है। एंड द जेंडर, जेंडर भी बहुत डिपेंड करता है, मेल एंड फीमेल। आप देखते हो कि कुछ इस तरह के, ऑब्वियसली मेल्स आर द मस्कुलाइन पर्सन्स कंपैरेटिव विद द फीमेल्स। फीमेल्स थोड़ा सा अलग उनका जो है पर्सनालिटी होती है। So besides this biological factors, there are the environmental factors also which affect your personality. So what are those? Those are the social environment, कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपकी सोसाइटी कैसी है, इसमें आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आप जो भी आपके आसपास जो भी उसमें आपके उनको देखते हुए आप अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या लीडरशिप क्वालिटीज की डेवलप करते हो। देन द कल्चरल एनवायरनमेंट, जैसा भी हमारा जो हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारा कल्चर जो भी जिस तरह का है कि अपना हमारे रहने का तरीका है, क्या खाते पीते हैं, वॉट एवर जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, बेसिकली जो हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन है ना, ये सब चीजें। तो ज्योग्राफिकल भी हमारा, कि हम जैसा मौसम किस तरह का है, दिल्ली में जो रह रहे हैं या साउथ इंडिया में जो रह रहे हैं, यहाँ पे किस तरह का मौसम बदलते हैं, या ठंड रहती है या गर्मी रहती है, इन सब चीजों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जैसे हॉट एरिया पीपल आर द लेजी एंड द ब्लैक, एंड द कोल्ड एरिया पीपल आर द एक्टिव एंड द कॉम्प्लेक्शन इज फेयर। द फैमिली एनवायरनमेंट भी का भी बहुत फर्क पड़ता है कि मेरे घर परिवार में कैसे है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है ना, आपस में कैसे हम लोगों का है। बिग फैमिली नीड द नॉट फुलफिलमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सोर्सेज कम होते हैं एंड यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट भी आपको बहुत फर्क पड़ता है कि वहाँ पे कैसी एक्टिविटीज आपको मिल रही है। खाली एकेडमिक्स की बात होती है या आपके वहाँ पे आपको क्यूरिकुलम जो भी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज हैं, कि थिएटर करने को मिल रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, ये सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है। देन द साइकोलॉजिकल इफेक्टर्स ऑल्सो। तो साइकोलॉजिकल इफेक्टर्स में आपका मेंटल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, तो वो भी आपके पर्सनालिटी को बताता है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे डील करने के लिए होते हो, आप क्विक डिसीजन मेकिंग हो, कैसे एक नॉलेज को एक्वायर करते हो, जो भी आसपास के वातावरण में आप अपना क्या आपका सहयोग रहता है, आप कैसे उस पे करते हो, व्हाट इज योर एटीट्यूड बेसिकली ऑल्सो। विल पावर भी आपकी है कि भाई किसी चीज को करने में आपने कितनी इच्छा होती है, या आप कुछ बहुत हमेशा आगे रहते हो, मोटिवेट दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते हो। सिचुएशनल फैक्टर्स जो भी होते हैं कि कैसे कैसे किस परिस्थिति में आपको जो हो रहे हैं, तो इस तरह से ही हमारी पर्सनालिटी को सारे डिटर्मिनेंट्स है जो इफेक्ट करते हैं। देन द टाइप ऑफ द पर्सनालिटी ऑल्सो, तो पर्सनालिटी अलग अलग तरह की होती है जी। It's 7 o'clock. Can we do it? ओके हाँ, मैं सिर्फ यही, ओके इट्स अ लॉन्ग वन, ठीक है, श्योर। तो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी टुमारो। ओके, टुमारो इज सैटरडे ना, ओके इट्स ओके। सो तो मैम कल क्लास नहीं होगी क्या? सैटरडे कल होगी, कल होगी। संडे को देखते हैं, संडे को, क्योंकि मुझे आपका कोर्स थोड़ा सा जल्दी खत्म करने की मेरी भी इच्छा है, बट संडे का आई एम नॉट श्योर। अगर नहीं होगी तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, कल होगी आपकी क्लास। क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर आपको रिवीजन करने का भी समय मिलना चाहिए, तो इसीलिए आपका कोशिश है कि मैं आपका टॉपिक जल्द से जल्द आपका करा दूं। तो कल मिलते हैं आपसे, और अभी जो है यहाँ पर विराम देते हैं।